Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 7th. Today we are going to start chapter number 2 in history, emerg- emergence of new kingdoms, 1700 to 1200 DC. In this chapter we are going to read about the kingdom that emerged during the early medieval period in the north and south of India, about the uh, tripartite struggle and the eh, strategic importance of Kannauj, about the Turkish invaders, about the most powerful kingdom in the south, the Cholas, and its administration. During the period 1700 to 1200 CE, denoted as the early medieval period, इसको पूर्व मध्यकालीन समय कहा गया है. A number of powerful regional kingdoms, बहुत सारे powerful regional kingdom across in North India में थे, the Deccan and the South India, Deccan Plateau और South India में थे. All these kingdom had desired to build an empire, ये सभी मिलके एक empire खड़ा करना चाहते थे, and therefore continually fought with each other, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, to gain control over the neighbor territories, अपने आस पड़ोस की territories को overrule करने के लिए. This 850 emergence of Cholas in the period of this time 800 to 1100, period of tripartite struggle between Palas, Gurjara, Parthanas, and Rashtrakutas, and the period of Muhammad Ghazni invention, 1000 to 1015. Second Battle of Tarain, 1119 to the First Battle of Tarain in 100 1192, and the First Battle of Tarain fought in 1191 between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan. Rise of New Kingdom, कई kingdoms जो थे वो इस समय पे rise कर रहे थे, डेवलप हो रहे थे. In the post Gupta period, गुप्ता वो चंद्रगुप्त काल से बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल उसके पोस्ट उसके बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल वर ऑल्सो ग्रेन लैंड, उसके पास भी लैंड थी, जमींदारी थी. दीज ऑफिशियल ओन्ड फिजिकल एंड मिलिट्री ऑब्लिगेशन टू द रूलर्स के ऑब्लिगेशन के लिए वो था. लैंड ग्रांट्स ग्रीव in the number in the 7th century and become widespread throughout the country. क्या क्या हुआ कि जब गुप्त काल खत्म होने के बाद जो जमींदार थे, these official फाइशियल मिलिट्री और मिलिट्री थी ऑब्लिजेंस द रूलर, उन्होंने रूल करने को दिया. लैंड ग्रैंड्स ग्रू इन द नंबर, लैंड्स तो थे वो धीरे धीरे वो जमींदार जो थे, लैंड ग्रैंड्स ग्रू इन न्यू नंबर, बहुत बढ़ रहे थे. इन सेवेंथ सेंचुरी वाइड स्प्रेड, और धीरे धीरे पूरे उसमें भारत में अपना राज्य फैला रहे थे. मोस्ट पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ ऑल द मेजर पावर, ज्यादातर वो जो किंगडम था, राज्य शासक था, मेजर पावर ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया इंक्लूड the territories under the control of such land official, also known as feudatories. जो क्या था, जो पावर थी वो किस किस की थी, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की इंक्लूड हो रही थी, जो वो और जो टेरिटरीज थे पास के वो उनको इंक्लूड कर रहे थे. लैंड ऑफिशियल आर feudatories. However, feudatory chiefs were eager to free themselves, अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे. whenever there was an opportunity, उसके पास और कोई opportunity थी.
Some of these feudatories struggled and rose from new kingdom. नया राज्य बनाने के उसमें कर रहे थे. During the early medieval period, पूर्व मध्यकालीन समय में, for example, Palas were dominated in the eastern India, whereas Gujaras, Pratiharas dominated India, western India and upper Gangetic Valley. मिडिवल फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा था, जो पालास था वो डोमिनेट कर रहे थे. कहाँ पे डोमिनेशन उनका कहाँ था, राज कहाँ कर रहे थे, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. वेयर एज गुर्जारास एंड प्रतिहारास वो किसके ऊपर डोमिनेट कर रहे थे, वेस्टर्न इंडिया पर. एंड द अपर जेनेटिक वैली, और अपर जेनेटिक वैली जो थी उस पर भी. द थर्ड मेजर किंगडम, और तीसरा बड़ा शासक, वॉज दैट ऑफ Rashtrakutas, who controlled the Deccan, वो डेक्कन प्लेटू, and the territories in the northern and south India. की जो टेरिटरीज थे, छोटे छोटे केंद्र शासित राज थे, उन पर भी वो कर रहे थे एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पर. अ नंबर ऑफ राजपूत, जो राजपूत थे, किंगडम्स ऑल्सो इमर्ज, ये भी आपस में जुड़ रहे थे ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में. अमंग देम द the Chahmanans and or Chauruhans were the prominent. In the south, the Cholas surfaced the most powerful. South में कौन थे, Cholas जो थे most powerful, अपना kingdom फैला रहे थे. Become for distinct administrative, अपना राज्य फैला रहे थे, structure एक विशाल साम्राज्य बनाने के लिए. And अगेन एक्सप्लोजन, और उसको और बढ़ाते जा रहे थे. द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ऑल द रूलिंग dynasties of the early medieval period had their own areas on influence. इस समय और भी डायनेस्टी थी जो अपने एरिया में रूल कर रही थी. बट दे ऑफन ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरिया फॉर मोर वेल्थ, वो अपना आपको और समृद्ध बनाने के लिए और दूसरे एरिया पे भी फैल रहे थे. वन सच ल्यूक्रेटिव एरिया वॉज कन्नौज, उनमें से एक और सब उस समय होड़ लगी थी अपना अपना राज्य फैलाने की, उसमें से एक एरिया था कन्नौज का. in Gagny's Valley, which as tripartite struggle between, इसके tripartite struggle था किनके बीच में, पालास, गुजरास and प्रतिहारास and Rashtrakutas. It said that the main cause of the struggle was desire to possess the city of Kannauj, which was a symbol of सोवरेनिटी. जो कन्नौज था वो जो एक बहुत बड़ा वो था, राज्य था, उस पे सभी लोग अपना अपना वो शासन जमाने की कोशिश कर रहे थे. एक होड़ लगी हुई थी सब में कि हम लोग कैसे अपना शासन फैलाएंगे. दिस वॉरफेयर वॉज ऑल्सो फॉर कंट्रोल ऑल ओवर द फर्टिलाइल रीजन ऑफ द जेनेटिक वैली. जेनेटिक वैली के जो जितने उपजाऊ क्षेत्र थे उन सब पे सभी लोग की होड़ थी कि राज्य कैसे जमाया जाए. अनदर प्राइम रीजन फॉर द देयर कॉन्फ्लिक्ट, और उनका जो एक और मुख्य कारण था उस जगह पे राज्य पाने का, वॉज डिजायर टू हैव कंट्रोल ओवर द रिचेस बियॉन्ड द ओन टेरिटरीज, अपने राज्य को और समृद्ध बनाना चाहते थे. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज द रूलर्स नीडेड हग अमाउंट ऑफ वेल्थ, अपने आप को और समृद्ध बनाना चाहते थे. इनहेंस देयर मिलिट्री पावर्स, और वो अपनी सेना को भी और पावरफुल बनाना चाहते थे. दे ऑल्सो टायर डोमिनेस्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्स बाय द बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, उससे वो बड़े बड़े. दे ऑल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे द पावर, कैसे, रिसोर्स बाय द बड़े बड़े
मंदिर बनाकर। लेट्स लर्न अबाउट दिस प्रोमिनेंट किंगडम। आइए किंगडम के बारे में पढ़ें। द गुर्जारा प्रतिहारास। The Gurjara Pratiharas are also known as Pratihar. The Gurjara और प्रतिहारस को हम प्रतिहारस के उसमें भी जानते हैं। Use their military skills, अपनी सेना के कौशल को, and power to carve out kingdom, और अपनी पावर को द किंगडम इन द वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में फैलाना चाहते थे। एज रूलर्स द प्रतिहारा केम इन टू prominence the middle of the 8th century। 8th century के middle में जो as the ruler Pratihara come into prominence, कहाँ पर आ गया था? the middle 8th century, middle 8th century में आ गया था। when their king, जब उनका राज था, नागा भट्ट first defend western India from the Arab incursions from सिंध टू राजस्थान। उन सिंध से लेके राजस्थान तक वो अरब से आ गया था। He was able to leave his successor a powerful principality comparing मालवा and parts of राजपूताना and गुजरात। उसने क्या किया था? उधर से वो आया था और उसने राजपूताना और गुजरात सब जगह पर अपना मालवा से लेकर अपना राज्य फैलाना चालू कर दिया था। द प्रतिहारा डेंसिटी एक्सप्लेन्ड द फ्लोरिश्ड द मोस्ट अंडर द रूलर। उनका रूलर कौन था? मिहिर भूज 836 to 85 CE। हिज सक्सेसर महेंद्रपाला 809। उसको कौन जीता? महेंद्रपाला 1890 to 910 at the Bengal in the east, at Punjab, Awadh, Malwa and Gujarat in the west। गुजरात वेस्ट तक उन्होंने किया। अब the Palas, the another important kingdom is the period of was that the Palas। दूसरा जो राज्य बहुत शासक था वो कौन था? Palas। The Palas kingdom was founded by Gopal in 750। 750 में पाला किंगडम जो था वो गोपाला ने वो उसका नींव रखी थी। It is believed that he was elected as the king by the nobles to end the regional anarchy। उसने जो रीजनल राज्यों में जो एनर्जी फैली हुई थी उसको दूर करने के लिए राज्य स्थापित किया। It seemed that consolidated his authority over almost the whole of Bengal, parts of Bihar। उसने बंगाल और बिहार के पार्ट्स पे अपना शासन फैला दिया था। गोपाल was an ardent Buddhist and had built the monastery at the Odentapuri in बिहार। वहां से लेकर उसने बिहार तक किया हुआ था। His successor धर्मपाला 770 to 810 CE explained the kingdom was able to control। उसने अपना राज्य ऐसे फैला दिया था कि वो कन्नौज पर उसी समय पर हमला करके राज्य स्थापित कर सके। देवपाला 810 to 850 CE, one of the most powerful पाला। पाला रूलर में एक और नाम आता है देवपाला, जिसने 810 से 850 तक राज्य किया। लेड रेड इन द नॉर्थ, और वो नॉर्थ उत्तर में उसने फैलाया। डेक्कन एंड नॉर्थ डेक्कन प्लेटू में और साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पेंसुला, इंडियन पेंसुला के किनारे उसने राज्य अपना फैला लिया था। एज अ बुद्धिस्ट, जैसा कि वो एक बुद्धिस्ट है, ही फाउंड द फेमस महावीराहा ऑफ विक्रमशिला नियर भागलपुर। भागलपुर के पास में उसने एक महाविला बनाया था जिसे विक्रमशिला कहा जा सकता है। ही ऑल्सो पेट्रॉन्ड हजारी हरभाद्रा अ ग्रेट बुद्धिस्ट ऑथर। ही ऑल्सो प्रेटेंड किया किसको? हरिधारा, जो कि बुद्धिस्ट ऑथर था। रामपाला
The last important ruler extend control the Prayajistrapa, Assam, the parts of Odisha and the parts of modern Nepal. उसने उड़ीसा और नेपाल पर अपना अपना किंगडम फैलाया. Okay children, we will continue the chapter. Good day.